Good morning class. This is Ravi Singh, your computer science teacher from Shivraj Singh Children Academy, and today we came here with our new chapter, that is recursion, in which we are going what is recursion, we are going to cover what is recursion, type of recursion and the cases of recursion. Clear? Now our first topic is what is recursion. Dear students, when we are studying about functions, then when we are writing some codes, the function call itself in a program. जो function हम define करते थे, in case of defining of the function, suppose the name of the function is calc something, और अगर calc something उस piece of code में दोबारा से repeat हो रहा था, it means the function calls itself in a program. Clear? This technique is called recursion. So what is recursion? Actually recursion is a problem solving technique in which function calls itself. Clear? When a function calls itself in a program, this technique is called recursion. Or when function calls itself in a program, this is called what? This is called recursion. So recursion is a kind of technique in which a function either calls itself or calls another function in a program. This technique is called recursion. A function may or may not call its function directly or indirectly. एक फंक्शन खुद को डायरेक्ट भी कॉल कर सकता है और इनडायरेक्टली भी आपका कॉल कर सकता है. दिस इज कॉल्ड रिकर्शन. नाउ एग्जांपल ऑफ रिकर्शन. We can include a simple example of recursion. Suppose a program of division. Define example. DEV. DEV is the name of function, means division. X comma y, these are two parameters. P is equal to x upon y, simple division. Return P. Clear? Number 1 is equal to int input enter first number. Number 2 is equal to int input enter second number. New variable r is equal to div number 1 comma number 2, print r. Clear? In this code you can easily observe that the function name is division and here the function calls itself in a program. Division is also described here. यहाँ पर भी division given है और आपका यहाँ पर भी division given है. It means when function calls itself in a program, this is called recursion, and this is an example of recursive
पाइथन कोड। तो ये रिकर्शन का एक एग्जांपल है। लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज रिकर्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। Recursion is slightly different from iteration. Iteration means the repetition of loop, while recursion means when the function directly or indirectly call itself in a program. This is called recursion. Now the next topic. The next topic is type of recursion. Types of recursion. Clear? The first type is direct recursion and the second type is indirect recursion. Clear? Indirect recursion, when the function call itself, this is called direct recursion, while the function call another function in a program, this is called indirect recursion. जब फंक्शन आपका किसी भी प्रोग्राम में खुद को कॉल करेगा, means when the function call itself in a program, this is called direct recursion, while when the function calls another function in a program, this is called indirect recursion. When function call itself in a program, this is called direct recursion, while when function call another function in a program is called indirect recursion. Clear? Now the example of direct recursion, we can easily understand. जब सेम फंक्शन को कॉल करेगा, फंक्शन अगर खुद को कॉल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिकर्शन. If the function call another function in a program, this is called indirect recursion. Clear? जैसे एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लें, define a. Clear? When the function calls itself, this is called direct recursion, while define a, define b, when in this case a calls function b, this is called indirect recursion. When the function calls another function, this is called indirect recursion, and when the function call itself in a program, this is called indirect recursion. Now we are going to write a sample program to compute the sum of n natural numbers with the help of recursion. यहाँ पर अगर आपको सम का कोड लिखना है तो फंक्शन यूज करना होगा, और जो भी कोड होगा दैट मस्ट बी रिकर्सिव कोड, मीन्स फंक्शन मस्ट कॉल इटसेल्फ इन ए प्रोग्राम. आप क्लास 10th में अगर 12th में अगर
कोड लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग कोड, तो वो रिकर्सिव कोड होना चाहिए, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है. दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. क्लियर? द टास्क इज write a Python program to compute the sum of n natural numbers. Clear? स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट. डिफाइन सम. एक पैरामीटर हम यहां असाइन कर देते हैं नंबर. क्लियर? कंडीशन एक अप्लाई करते हैं. सपोज इफ ओनली सिंगल नंबर इज एंटर्ड मीन्स 1. द सम ऑफ 1 मीन्स ओनली 1 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 1. तो कंडीशनल स्टेटमेंट पर लेकर जाते हैं. इफ number is equal to 1 means this the result of this computation is always fixed which is equal to 1. That's why we are returning the value 1 to the function. Return 1. अगर नंबर ओनली 1 है, केवल एक ही नंबर एंटर हुआ है, देन द फर्स्ट 1 का सम क्या होगा? केवल 1 ही होगा. इस वजह से हम डायरेक्ट रिकर्शन में क्या कर रहे हैं? 1 रिटर्न कर दे रहे हैं. ठीक है, ये हमारा केस ऑफ रिकर्शन में आएगा. दिस इज अ बेस केस मीन्स व्हेन द रिजल्ट इज नॉन, दिस इज कॉल्ड बेस केस. ये बेस केस होगा. क्लियर? इसके बाद हमें क्या है? कंप्यूटेशंस वगैरह को परफॉर्म करना है. कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है. जो अदर केसेस हमारे यहाँ पर बसते हैं, उन अदर केसेस को भी क्या करना है? चेक करना है. तो अदर केसेस पे हम आते हैं. एल्स, इफ, देन एल्स. एल्स कंडीशन. इन एल्स कंडीशन हम जो रेस्ट केसेस हैं उनको कंसिडर करेंगे. क्लियर? एल्स रिटर्न क्या रिटर्न होगा? द कंप्यूटेशन. सपोज सम ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, तो 4 + 3 + 2 + 1, ये कंप्यूटेशन भी हमारे यहाँ क्या होनी चाहिए? परफॉर्म होनी चाहिए. उसी चीज को हमें यहाँ पर समझना है कि ये कंप्यूटेशन हमारा कैसे परफॉर्म होगा. रिटर्न नंबर प्लस फंक्शन कॉल कर लें सम नंबर -1. क्लियर? इसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा. अब सपोज करो हमें ये तो पता ही नहीं है इस केस में हाउ मैनी नंबर्स वी हैव टू एंटर और अप टू विच नंबर वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स. कितने नंबर्स तक का सम चाहिए ये तो हमें पता ही नहीं है यहाँ पर. तो हम यहाँ पर एक कोई न्यू वेरिएबल ले लें. सपोज एक लास्ट वेरिएबल नेम से ले लें. लास्ट इज इक्वल टू 4. 4 इज असाइन टू द लास्ट. लास्ट इज द नेम ऑफ वेरिएबल. यहाँ पर हमने 4 असाइन कर दिया है. अब इसी चीज को हमें ये समझना है कि इसको हम कैसे अपने प्रोग्रामिंग कोड में यूज कर सकते हैं. फंक्शन को फिर से कॉल कर लेते हैं. एक वेरिएबल फिर से डिफाइन कर लेते हैं एस सम नेम से. क्लियर? एस सम इज इक्वल टू सम. एस सम इज इक्वल टू सम लास्ट. प्रिंट the sum of natural numbers from 1 to last, comma string is comma s sum. Clear? This is the code for the to print the sum of n natural numbers with the help of recursion. Clear?
Now students, we are here with our new task, that is we have to write a recursive Python code to print n terms of a Fibonacci series. Fibonacci सीरीज को विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन हमें एक ऐसा पाइथन कोड लिखना है जिसमें हमें रिकर्शन भी दिखाई दे और फिबोनाची सीरीज का nth टर्म, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूजर इनपुट, उतने टर्म्स तक का आपका प्रिंट प्रोड्यूस होना चाहिए. क्लियर? नाउ first of all we have to discuss what is Fibonacci series. It's a kind of mathematical series in which the first two terms are fixed, means the first term is equal to 0 and the second term is equal to 1, means the first and second terms in Fibonacci series are fixed, means the first term is 0 and the second term is 1. Now what about the next term? The next term is the sum of previous two terms. जो हमारी next term होगी, पहली और दूसरी term जो है that is fixed in Fibonacci series, जो हमेशा 0 और 1 होगी. पहली term हमारा 0 होगी, ये fix होगा, और second term जो है वो हमारा 1 होगा, ये भी हमेशा fix होगा. Now what is the value of next term? The value of next term is the sum of previous two terms. यहाँ पर दो ही terms हैं, तो 0 plus 1 is equal to 1. Now what is the next term? Sum of previous two terms. Next term हमें यहाँ लिखनी है. Next term क्या होगा? हमें यही पता करना है previous two terms कौन सी है, 1 and 1. 1 plus 1 is equal to 2. हमारा next term हो जाएगा 2. Again what is the value of next term? The previous sum of previous two terms. Previous two terms में पहले दो terms कौन सी हैं? Previously जो question मार्क है उससे पहले की दो terms क्या हमारा 2 and 1. The sum of 2 plus 1 is equal to 3, means the next term is 3. In similar way 3 plus 2 5, in similar way 5 plus 3 8, in similar way 8 plus 5 13, in similar way 13 plus 8 21. This kind of series is called Fibonacci series. Now we have to write the code how to print this Fibonacci series with the help of recursion. Clear? Recursion का कोड लिखना है जिसमें हमें Fibonacci series क्या है प्रिंट करानी है. सबसे पहले क्या करेंगे, यूजर डिफाइन फंक्शन एक क्रिएट कर लेते हैं. नाउ द डिफाइनिंग ऑफ द फंक्शन इज डेफ. Fibonacci series है तो फंक्शन नेम इज fib रख लेते हैं. और सपोज हमें nth टर्म्स तक प्रिंट कराना है तो हम नंबर ऑफ टर्म्स को क्या ले लेते हैं एज अ पैरामीटर यहाँ पर n. सपोज 5 Fibonacci टर्म्स प्रिंट कराना है, देन n विल बी इज इक्वल टू 5. 10 कराना है, n इज इक्वल टू 10. सो जहाँ तक हमें प्रिंट कराना है वहाँ तक. अप्लाई कॉलन. अभी हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट टू टर्म्स are fixed, means these two terms are 0 and 1. ये दो टर्म्स हमारा फिक्स होती हैं 0 and 1. उनके लिए हमें यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना होगा. कंडीशनल स्टेटमेंट हम बनाएंगे if n is equal to 1, क्या रिटर्न होगा हमारा. अगर एक ही टर्म हमें प्रिंट करानी है तो फर्स्ट टू टर्म्स में फर्स्ट टर्म कौन सी है 0, मीन्स रिटर्न 0. अगर दो टर्म प्रिंट करानी है तो क्या होगा हमारा 1 होगा. एल्स एक और कंडीशनल स्टेटमेंट आएगा, एल्स में लेंगे फिर हम नेक्स्ट कंडीशंस को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे. इट मींस हम आते हैं एलिफ पोर्शन पे. एलिफ n इज इक्वल टू 2, या तो दो टर्म्स होंगी, देन रिटर्न 1. क्लियर? अब हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट ये आता है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू 3 4 5 और समथिंग. n की वैल्यू अगर हमारा ज्यादा होती है तो उस केस में हमें क्या करना है, यहां पर हमें यही चीज को समझना है. इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 0, इफ n इज इक्वल टू 2 रिटर्न 1. एल्स कंडीशन में बाकी कंडीशंस क्या बन रही है, द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स. अभी हमने स्टार्टिंग में फिबोनाची सीरीज को समझा तो उसमें हमने यही देखा है
द नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म हमारा फिक्स था, वो हमने यहाँ प्रिंट करा दिया, सेकेंड टर्म हमारी फिक्स थी, वो भी हमने प्रिंट करा दिया। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट अपकमिंग टर्म्स, दीज आर द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स, एल्स रिटर्न n-1 प्लस fib n-1, फंक्शन कॉल करना होगा, रिटर्न fib n-1 प्लस fib n-2। ये जो दो आपका टर्म्स होगी जहां फंक्शन fib कॉल हो रहा है, fib n-1 एंड fib n-2, दिस इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। ये इससे पहले की टर्म होगी और ये उसके और पहले वाली टर्म होगी हमारी। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द रिकर्शन। यहीं पर हमारा रिकर्शन कॉल हो रहा है। व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड रिकर्शन। सपोज आई वांट टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज डिफाइंड बाय द यूजर। मैं 10 टर्म्स, 11 टर्म्स, 12 टर्म्स तक का या 50 टर्म्स तक की फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना चाह रहा हूं, तो मुझे यूजर इनपुट फंक्शन देना होगा। तो यूजर इनपुट के लिए मैं एक लिख देता हूं, n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर? यहाँ पर हमें रिपीटिशन भी लेना है लूप का, जिसकी वजह से हमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, कंटिन्यूसली रन होते रहें। फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक हमें लेना है, फ्रॉम 1 टू n+1, क्योंकि अगर 10 टर्म्स तक प्रिंट करना है तो अगर हम यहाँ पर 1 to 10 लिखते हैं तो अप टू 9 तक ही ये n की वैल्यू पिक करेगा। दैट्स वाई अगर हमें 10 टर्म्स लेना है तो 10 + 1 11 हो जाएगा और अप टू 10 तक की टर्म्स को क्या कर देगा, ये हमारा प्रिंट कर देगा। क्लियर? नाउ प्रिंट, फिर से फंक्शन कॉल करना होगा। द फंक्शन नेम इज fib i। क्लियर? ये हमारा क्या है, nth टर्म तक फिबोनाची सीरीज को प्रिंट कर देगा। सपोज हम इसको सेव कर देते हैं प्रोग्राम को, देन प्रेस F5 की, यू विल गेट आइडियली ऑन योर स्क्रीन। नाउ यू विल गेट अ मैसेज एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। सपोज आप नंबर ऑफ टर्म्स कितना एंटर कर देते हैं, 5, तो अप टू 5 तक फिबोनाची सीरीज प्रिंट करेगा। मीन्स 0 and 1, 2 टर्म्स आर फिक्स्ड, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3। अगर आप यहाँ 6 कर देते हैं तो 3 + 2 = 5। अगर यहाँ n इज इक्वल टू हमारा 5 हो जाता है तो दिस इज फिबोनाची सीरीज फॉर n इज इक्वल टू 5। दिस इज द आउटपुट ऑन द IDLE। क्लियर? I think everything is clear in this code. If you have any problem then you can ask. Clear? Define Fibo, फंक्शन डिफाइन हो रहा है अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हमें n टर्म्स तक का फिबोनाची सीरीज का कोड लिखना है। कंडीशनल है, द फर्स्ट 2 टर्म्स आर फिक्स्ड। फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट 2 टर्म्स फिक्स्ड होते हैं, इस वजह से हमें यहाँ पर इफ n इज इक्वल टू 1 केवल 1 टर्म प्रिंट कराना है तो 0, इफ n इज इक्वल टू 2 2 टर्म्स प्रिंट कराना है तो 2 टर्म्स आर फिक्स्ड, मीन्स 0 and 1 हो जाएगा। एल्स if more than 2 terms, then we have to write a recursion code, return fib n-1 plus fib n-2, sum of previous 2 terms, sum of previous 2 terms, sum of previous 2 terms, sum of previous 2 terms. Clear? Now for user input, n is equal to int input enter number of terms. फॉर आई इन रेंज 1 to n+1, n+1 इसलिए लिया है, इफ n इज इक्वल टू 10 तो +1 11 रहेगा और रेंज हमारा 1 to 10 तक यहाँ पर कंसीडर होगा। प्रिंट फिबो i की वैल्यू एज एन आर्गूमेंट यहाँ पर क्या होगी, n के प्लेस पर पास हो जाएगी और i की वैल्यू हमेशा कहाँ से पिक होगी, फ्रॉम रेंज फंक्शन से। ठीक है?
Clear?